ایک زمانے کی بات ہے، وہ زمانہ جب بنی اسرائیل دنیا کی مشہور ترین قوموں میں شمار ہوتے تھے۔ یہ وہی قوم تھی جسے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کی شکل میں بے شمار نعمتیں عطا کیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت یوشع علیہ السلام اور پھر ان کے بعد آنے والے انبیاء سب انہی میں مبعوث ہوئے۔ مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ بنی اسرائیل کا مزاج بہت عجیب تھا۔ کبھی وہ ایمان لاتے اور اللہ کی نصرت سے فتح پاتے، اور کبھی نافرمانی کر کے زوال کا شکار ہو جاتے۔ جب وہ اللہ کی اطاعت کرتے تو زمین کی بادشاہتیں ان کے قدموں میں ہوتی، اور جب سرکشی کرتے تو ان کے دشمن ان پر مسلط ہو جاتے۔ اسی زمانے میں ایک نبی مبعوث ہوئے جن کا نام تھا حضرت شمویل علیہ السلام۔ آپ بڑے باعلم اور اللہ کے مقرب نبی تھے۔ آپ نے اپنی قوم کو بار بار سمجھایا کہ اللہ کی اطاعت کرو، گناہوں سے بچو اور دشمنوں کے خلاف صبر و استقامت اختیار کرو۔ لیکن بنی اسرائیل اپنی ضدی طبیعت کے مطابق بہانے بناتے اور کمزوری دکھاتے۔ ایک دن بنی اسرائیل کے بڑے اور سردار حضرت شمویل علیہ السلام کے پاس آئے۔ وہ پریشان حال تھے، چہروں پر تھکن اور دلوں پر شکست کا بوجھ نمایاں تھا۔ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، ہمارے دشمن عمالقہ نے ہمیں ستا رکھا ہے۔ وہ ہماری زمینیں چھین لیتے ہیں، ہمارے بیٹے قتل کرتے ہیں اور ہماری عزتیں پامال کرتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ اللہ سے دعا کریں اور ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ ہم اس کے پیچھے چلیں اور دشمنوں سے جہاد کریں۔ یہ سن کر حضرت شمویل علیہ السلام نے گہری نظر سے ان کی طرف دیکھا اور فرمایا، مجھے ڈر ہے کہ جب اللہ تمہارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کر دے اور تمہیں جہاد کا حکم ملے تو تم پھر بہانہ نہ کرو اور پیٹھ نہ دکھا دو۔ بنی اسرائیل نے پرعزم لہجے میں کہا، کیوں نہیں، ہم کیوں نہ اللہ کی راہ میں لڑیں گے؟ ہم تو اپنے گھروں سے نکالے جا چکے ہیں، ہماری اولاد قتل ہو چکی ہے، ہمارے وطن اجڑ گئے ہیں۔ اے نبی، آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ ہمارے لیے بادشاہ مقرر کرے۔ حضرت شمویل علیہ السلام نے دعا کی۔ کچھ دنوں کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی، ہم نے طالوت کو ان کا بادشاہ مقرر کیا ہے۔ جب حضرت شمویل علیہ السلام نے یہ اعلان کیا تو بنی اسرائیل میں ہنگامہ برپا ہو گیا۔ حضرت شمویل علیہ السلام نے دعا کی۔ کچھ دنوں کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی، ہم نے طالوت کو ان کا بادشاہ مقرر کیا ہے۔ جب حضرت شمویل علیہ السلام نے یہ اعلان کیا تو بنی اسرائیل میں ہنگامہ برپا ہو گیا۔ حضرت شمویل علیہ السلام نے اللہ کا پیغام پہنچایا، یہ تمہارا فیصلہ نہیں، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اللہ نے طالوت کو تم پر بادشاہ مقرر کیا ہے۔ اللہ نے اسے تم سب سے زیادہ علم اور جسمانی طاقت عطا کی ہے، اور جان لو کہ بادشاہت اللہ کی ہے، وہ جسے چاہے عطا کر دے۔ پھر حضرت شمویل علیہ السلام نے مزید فرمایا، اگر تمہیں شک ہے تو اللہ خود تمہارے سامنے اس کی بادشاہی کی نشانی بھیج دے گا۔ وہ تابوت سکینہ ہے جو تمہارے پاس آ جائے گا۔ اس تابوت میں تمہارے دلوں کا سکون ہے، اس میں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے ترکہ کی چیزیں ہیں، اور اسے فرشتے اٹھا کر لائیں گے۔ جب یہ تابوت آ جائے گا تو سمجھ لینا کہ طالوت واقعی اللہ کے منتخب بادشاہ ہیں۔ چند دن گزرے ہی تھے کہ ایک حیران کن منظر بنی اسرائیل نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ آسمان سے 4 فرشتے ایک صندوق اٹھائے ہوئے اترے۔ یہ وہی تابوت سکینہ تھا جسے دشمنوں نے بہت پہلے بنی اسرائیل سے چھین لیا تھا۔ فرشتے وہ تابوت لا کر حضرت شمویل علیہ السلام کے پاس رکھ گئے۔ قوم یہ منظر دیکھ کر لرز اٹھی، دلوں پر عجیب سکون اتر آیا۔ وہ جان گئے کہ یہ اللہ کی طرف سے معجزہ ہے اور طالوت ہی ان کے بادشاہ ہیں۔ طالوت نہایت بلند قد، مضبوط جسم اور علم و حکمت سے بھرپور شخصیت کے مالک تھے۔ اگرچہ ان کا خاندان غریب تھا، لیکن ان کے اندر اللہ نے غیر معمولی طاقت اور عقل و دانش رکھی تھی۔ ان کے کردار میں عاجزی، دیانت اور صبر تھا، یہی اوصاف انہیں بادشاہی کے قابل بناتے تھے۔ اب بنی اسرائیل نے خاموشی سے طالوت کی بادشاہی تسلیم کر لی۔ طالوت نے نہ صرف حکومت کا انتظام سنبھالا بلکہ اپنی قوم کو جہاد کے لیے تیار کرنا شروع کیا۔ طالوت نے اعلان کیا کہ وہ ایک مضبوط فوج تیار کریں گے۔ اس کے لیے انہوں نے ہر قبیلے سے بہادر،
और जवान मर्दों को बुलाया। देखते ही देखते हजारों लोग तैयार हो गए। हर कोई अपने हथियार साथ लाया। चंद दिन बाद तालूत को वही के जरिए इत्तला मिली कि अल्लाह ताला उनकी फौज को एक बड़े इम्तिहान में डालने वाला है। ये इम्तिहान पानी के करीब आकर होगा। तालूत ने अपनी फौज को जमा किया और कहा, ए मेरे साथियों, अल्लाह ने हमें एक इम्तिहान में डालने का फैसला किया है। जब हम दरिया के किनारे पहुंचेंगे तो अल्लाह तुम्हें आजमाएगा। जिसने दरिया का पानी सेर होकर पिया वो मेरा साथी नहीं रहेगा। जिसने बस एक चलो पानी लिया वो मेरे साथ रह सकता है, और जो बिल्कुल सब्र करेगा और पानी नहीं पिएगा वही सबसे ज्यादा कामयाब होगा। आखिरकार फौज चलते चलते एक बड़े दरिया के किनारे आ पहुंची। धूप तेज थी, गर्मी सख्त थी और प्यास हर एक को सता रही थी। दरिया का ठंडा और मीठा पानी सामने लहरों की सूरत में बह रहा था। प्यासे सिपाहियों की आंखों में चमक आ गई। उनके दिल में ख्वाहिश जाग उठी कि वो दौड़कर पानी पी ले। तालूत ने एक बार फिर बुलंद आवाज में कहा, खबरदार, ये अल्लाह की तरफ से इम्तिहान है। जो मेरा साथ देना चाहता है वो पानी सिर्फ एक चलो पी सकता है। जो उससे ज्यादा पिएगा वो मेरा साथी नहीं होगा। फौज के एक बड़े हिस्से ने सब्र का दामन छोड़ दिया। वो भागकर दरिया के अंदर गए और जी भरकर पानी पिया। उनके जिस्म को तो सुकून मिला, लेकिन उनके दिलों से ईमान का नूर छन गया। दूसरे ऐसे थे जिन्होंने बस एक चलो पानी लिया। उन्होंने अपने होंठ तर किए और सब्र से काम लिया। उनकी आंखों में इज़्म की चमक थी। और फिर एक कलील गुरवा ऐसा भी था जिन्होंने पानी को हाथ तक न लगाया। वो अपने बादशाह के हुक्म पर कायम रहे और कहा, हमारा भरोसा अल्लाह पर है, वही हमारी प्यास बुझाएगा। दरिया के इम्तिहान के बाद फौज का हाल ये था कि हजारों में से सिर्फ चंद सौ लोग ही बाकी रह गए थे। दरिया का इम्तिहान मुकम्मल होने के बाद तालूत और उनके चंद सौ सिपाही आगे बढ़े। दूर उफुक पर एक गिरदुगबार का तूफान उठता नजर आया। वो जालूत का लश्कर था। जालूत एक मशहूर और ताकतूर जंगजू था। इसका कद लंबा, जिस्म फौलाद की तरह मजबूत और जरा भारी लोहे की थी। उसकी तलवार चमकदार और ढाल बड़ी व वजनी थी। बनी इसराइल के दिल में उसका खौफ बैठा हुआ था। जब दोनों लश्कर आमने सामने खड़े हुए तो तालूत और उनके साथियों ने आसमान की तरफ हाथ उठाए और पुकारा, ए हमारे रब, हम पर सब्र अंडेल दे, हमारे कदम जमा दे और हमें काफिरों पर नसरत अता फरमा। ये दुआ उनके दिलों को मजबूत कर गई। उनके कदम जम गए और आंखों में यकीन की रोशनी झलकने लगी। मैदान जंग में सुनाटा छाया हुआ था। बनी इसराइल की फौज एक तरफ खड़ी थी, जबकि जालूत की भारी भरकम फौज दूसरी जानिब सफारा थी। दोनों लश्कर एक दूसरे को घूर रहे थे, लेकिन असल खौफ एक ही वजूद ने पैदा किया था। जालूत, वो देव हेकल सिपाही जिसका कद आम इंसानों से कहीं ज्यादा था, जिसके जिस्म पर भारी ज़िरह और हाथ में एक ऐसी तलवार थी जिसे उठाना भी आम सिपाहियों के बस में न था। अचानक जालूत आगे बढ़ा। उसने बुलंद आवाज में लिलकारा, ए बनी इसराइल, अगर तुम में कोई बहादुर है तो मेरे मुकाबले में निकले। जो मुझे शिकस्त देगा वही आज का फातिह होगा। लेकिन याद रखो, तुम सबके सब कमजोर और डरपोक हो। यह आवाज सुनकर बनी इसराइल के सिपाहियों पर खौफ की लहर दौड़ गई। कई सिपाही नजरें झुका गए। दिलों पर खौफ की ऐसी गिरफ्त थी कि कोई भी आगे बढ़ने की हिम्मत न कर सका। ऐसे में एक नौजवान सफ से आगे बढ़ा। इसका नाम था दाऊद। वो तालूत की फौज में एक आम सिपाही था। दरमियाना कद, चेहरे पर ईमान की रोशनी, दिल में गैर मामूली यकीन। इसके पास न भारी जरा थी न कोई बड़ी तलवार, सिर्फ एक गुला, सिंगंदाज और चंद हमवार। कंकरियान दाऊद ने प्रहिज्म लहजे में कहा, मैं जालूत का मुकाबला करूंगा। ये सुनकर फौज में सरगोशियां शुरू हो गईं। सिपाही एक दूसरे से कहने लगे, ये नौजवान, ये कैसे लड़ेगा जालूत जैसे दीव से? ये तो चरवाहा है। तालूत भी हैरान रह गए। उन्होंने कहा, ए दाऊद, तुम अभी जवान हो, तुम्हारे पास हथियार भी नहीं। जालूत के सामने जाना आसान नहीं है। दाऊद ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मेरे बादशाह, मैं अपनी बिक्रियों की हिफाजत करते हुए कई बार
शेर और भेड़िए का मुकाबला कर चुका हूं। अल्लाह ने हमेशा मुझे बचाया है। मेरा यकीन है कि अल्लाह ही मुझे जालूत पर फतह देगा। दाऊद के यकीन और हौसले ने तालूत के दिल को नर्म कर दिया। कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने अल्लाह पर भरोसा करते हुए इजाजत दे दी। दाऊद आगे बढ़े। वो दरिया के किनारे गए और वहां से चंद हमवार कंकरियां उठाएं। अपनी गुले को मजबूती से थामा और अल्लाह का नाम लेकर मैदान की तरफ रवाना हो गए। जालूत ने जब दाऊद को आते देखा तो जोरदार कहकहा लगाया, ये बच्चा मेरे मुकाबले में आया है, क्या तुम मुझे मजाक समझते हो? लेकिन दाऊद बिल्कुल न घबराए। उन्होंने बुलंद आवाज में कहा, मैं अल्लाह के नाम पर आया हूं जो सबका रब है। आज तुझे पता चल जाएगा कि असल ताकत किसके पास है। जालूत ने अपनी भारी तलवार उठाई और आगे बढ़ा। उसके हर कदम से जमीन लरजती महसूस होती थी। बनी इसराइल के सिपाहियों के दिल जोर जोर से धड़कने लगे। सबकी नजरें उस छोटे चरवाहे पर थीं जिसने दीव हेकल जंगजू को लिलकारा था। दाऊद ने सुकून से अपनी गुले में एक कंकरी रखी, दोनों हाथों से उसे घमाया, अल्लाह का नाम लिया और पूरी कुव्वत से छोड़ दिया। वो कंकरी सीधी जालूत के पेशानी के ऐन वस्त पर लगी। लम्हे भर के लिए जालूत सुन्न हो गया। उसकी आंखें फटी रह गईं, हाथ से तलवार छूट गई और फिर वो धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। इसका भारी भरकम जिस्म जमीन से टकराया तो धूल का तूफान उठ गया। बनी इसराइल के लश्कर से हैरत और खुशी की आवाजें बुलंद हुईं। वो जालूत जिसका खौफ सदियों से उनके दिलों में बैठा था, अल्लाह ने एक छोटी सी कंकरी से खत्म कर दिया। जालूत के मरने की देर थी कि उसका पूरा लश्कर घबरा गया। उनके दिलों से हौसला उतर गया और वो मैदान जंग छोड़कर भागने लगे। तालूत और उनके सिपाहियों ने उनका पीछा किया और फैसला किन फतह हासिल की। वो जमीन जो बरसों से दुश्मन के कब्जे में थी, दोबारा बनी इसराइल के हाथ आ गई। मैदान जंग में शुक्र के नारे गूंजने लगे। तालूत ने सजदा किया और कहा, ए अल्लाह, ये सब तेरी मदद है, न कि हमारी ताकत। दाऊद का नाम बनी इसराइल के हर गांव और हर बस्ती में गूंज उठा। वही दाऊद जो कल तक एक आम चरवाहा था, आज अल्लाह के हुक्म से एक अजीम हीरो बन गया। बाद में यही दाऊद अल्लाह के नबी और बादशाह बने और उनकी बादशाहत अदल व हिकमत की मिसाल बन गई।